everyone, and welcome to yet another exciting episode of My Favorite Raga with me, Shinjini Kulkarni. Music practitioners across centuries have believed that God resides in the silence between two notes. This meditative pause is the moment when the Supreme Being reveals itself in its true glory to all the artists. My Favorite Raga takes us on a journey with the maestros of Indian classical music who constantly live in this meditative state. इस शो में फीचर्ड संगीत के महान कलाकारों के जरिए हम ढूंढ पाते हैं दो सुरों के बीच में बसता एक पूरा ब्रह्मांड। हमारा सफर हमें हर बार एक नए शहर, एक नए फनकार के पास ले जाता है। But this time, as we culminate the journey of our show, we leave behind the physical world of drawn boundaries. Because today's episode's maestro does not live here. He lives in the world of sound. A legend who is the recipient of the second highest civilian honor of the country, Padma Vibhushan, who holds a Grammy nomination and was just 30 years of age when he received the Padma Shri. Complete musicianship is something which you can admire and contribute and in any kind of music in the world. My father often used to say कि खुदा करे आप मुकम्मिल म्यूजिशियन बने। Ustad Amjad Ali Khan, who is the first to compose a Sarod concerto titled Samagam for the global audience, but most importantly, whose name itself has become synonymous with his instrument, the Sarod. In European classical music, my involvement with Scottish Chamber Orchestra, they requested me to compose for their orchestra. So for 1 hour, I wrote music and I composed for them. Ustad Amjad Ali Khan, the youngest son of the doyen of Sarod, Ustad Hafiz Ali Khan Sahib, tells us about his father, उनका सिखाया हुआ discipline. ग्वालियर में बीते तालीम के दिन अपने वालिद साहब के साथ कबूतरों को दाना डालना और भी ऐसी कई बचपन की यादें जिनको उन्होंने आज भी संजोया हुआ है। My father was always very worried that I should not go to Bombay, I should not join film world and this and that. So in my childhood, he was very careful that we shouldn't listen to film songs also. Because that was the time people running from all the small towns and going to Mumbai to make a career and to earn a lot of money. So, but I am very fortunate that I could spend time with such a great saint. He was very kind, compassionate, very encouraging and most contented person. उनको हमेशा ऐसा लगा कि सब कुछ है उनके पास, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी शख्सियत, उनका जो ख्यालात थे, उनके जो इरादे थे, committed to purity of sound, purity of music. The transfer of baton from father to son continues unabated to Ustadji's two celebrated sons, while the lineage and the legacy remains undiluted. The method of Taaleem has undergone some subtle changes. From a guru symbolizing an entire institution, we now live in a time where a brick and mortar structure is considered an institute.
ज़रूरी नहीं है कि हर गुरु का शिष्य बहुत कामयाब हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बाप को औलाद मिले। औलाद का सुख, शिष्य का सुख, ये सबकी किस्मत में नहीं होता है, क्योंकि और कभी ऐसा होता है कि शिष्य गुरु से ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है, और कई दफ़ा गुरु ज़्यादा मशहूर होता है, शागिर्द कभी भी मशहूर नहीं हो पाता है। सो कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ा पवित्र रिश्ता है गुरु शिष्य परंपरा का, जहाँ शिष्य को समर्पित होना पड़ता है। Three different. He was different and children are different. When Khan Sahab came, I was enamored. I always felt that I know this gentleman, I live with him, I share everything with him, but yet when he came on stage, within few seconds I feel he is a mirage to me. I never understood. I could not relate my living with him with the Sakshiyat, as they call, who is performing today. He becomes a different. But Aman and Ayan's case, it was different. I was very tense, nervous, but I had somehow confidence in their, or my upbringing, or their ability, the training that the father gave. The father never said that you have to do this or you have to do. They had the freedom, and as they say, freedom within the discipline. They had the freedom to express their musicality through whatever they wanted to do. Ustadji's companion for over 4.5 decades, Bharatnatyam danceress Mrs. Subhalakshmi Khan, tells us about being surrounded in a house full of sarod players. परिवार के हर सदस्य को मंच पर देख के वो क्या अनुभव करती हैं, और उनके 50th बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट जो खास उस्ताद जी ने क्रिएट किया था उनके लिए। Subhalakshmi, very embarrassing, very happy. I think it's a very special thing he has done for me as a husband. And as a musician of his repute, to get a feeling like that, I think it is great. If I can be a drop in the ocean, I will feel that my life is fulfilled. The melody which I composed for her is very. That's very embarrassing for that me. First time I played in Chennai, in Music Academy Hall, in front of 2,500 people, because I feel there is a room of creativity. ये सुबह सांस लेगी. Ustadji's contribution to music doesn't just pause at sarod. He's a skilled tabla player and a natural singer. Da 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 da. Chalo. He also dons the hat of an author, documenting illustrious figures of Indian classical music through his books titled Master on Masters and My Abba Our Fraternity. पहला फ़र्ज़ हर शागिर्द का यही होता है कि वो अपने गुरु के ऊपर किताब लिखे या अपने रिश्तेदारों के ऊपर किताब लिखे, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट किसी दूसरे कलाकारों के ऊपर लिखे। तो ये मुझे बहुत बड़ा अपने गुरु से, बड़ों से आशीर्वाद मिला कि मैंने हर संगीतकार में उसकी खूबी देखने की कोशिश करी, उनका
उनका सोच क्या है, केसर बाई का सोच क्या है, बेगम अख्तर जी का सोच क्या है, और उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का क्या सोच है, उस्ताद अमीर ख़ान साहब का। तो ये हमारे गुरु का यही आदेश था कि बेटा हर कलाकार में उसकी खूबी देखने का कोशिश करो। Let's hear him talk about the time when the magician of music dabbled in the world of words. MS सुब्बलक्ष्मी जो एक ऐसी गायिका थी जो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हुआ है। तो एक दफ़ा मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा रेडियो ऑन था, तो ये साउथ इंडियन लेडी गाना गा रही थी। वो इतना प्रभावित था, इतना अपीलिंग गाना था कि मैं गाड़ी चलाते चलाते मेरे दिमाग में ये सोच आया कि क्या ये सुब्बलक्ष्मी हो सकती हैं क्या, क्योंकि उस वक़्त तक मैं उनसे मिला नहीं था, ना मैंने उनको सामने से कभी सुना था। तो मुझे गाड़ी चलाते चलाते मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया उनके म्यूज़िक में। तो मैंने कार को एक जगह रोक लिया और रोक कर मैंने ध्यान से उनका गाना सुना, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अनाउंसमेंट सुनना ज़रूरी है कि एक महिला कौन है जो गा रही है इतना अच्छा। तो फिर अनाउंसमेंट यही हुआ कि अभी आप श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी का गाना सुन रहे थे। तो हमेशा जब भी मैं चेन्नई जाता था तो वो कॉन्सर्ट में आती थी और मैं उनके घर जाता था साउथ इंडियन कॉफ़ी पीने के लिए। बहुत प्यार से वो मुझे कॉफ़ी देती थी, और हमारा सारा ही परिवार हमेशा जब भी चेन्नई गए उनके घर ज़रूर जाते थे। बेगम अख्तर, जिनको मल्लिकाए गज़ल कहा जाता था, जिनकी वजह से गज़ल कॉन्सर्ट लेवल तक पहुंची। मुझे अभी भी याद है उनकी आवाज़ कहती थी कि मेरा नाम फैज़ाबाद वाली अख्तरी। तो जब हम छोटे थे, 12-13 साल की हमारी उम्र, और जब पहली बार कलकत्ते में मैं अब्बा के साथ गया था, तो वहाँ उसी होटल में वो भी ठहरी हुई थी। तो वो इससे पहले कि मैं उनको आदाब करूं, वो मुझे कहती हैं कि खान साहब आदाब। आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड कि ये बुज़ुर्ग हो के मुझे शायद मेरा मजाक उड़ा रही हैं, ऐसा मुझे लगा। लेकिन वो सिलसिला चलता रहा। जब भी सामने आए तो मैं आदाब करने से पहले वो मुझे खान साहब आदाब। तो और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं हॉल में बैठा हूँ उनको सुनने के लिए, तो वो स्टेज से कह रही है खान साहब इजाज़त है। तो सब लोग इधर उधर देखते थे, भाई कौन खान साहब है, उसकी कोई दाढ़ी होगी या बहुत लंबा चौड़ा आदमी होगा। तो वो ये होता रहा। तो मुझे बाद में ये समझ आई बात कि वो मेरे ज़रिए मेरे बुज़ुर्गों को इज़्ज़त देती थी। Khan Sahab's creativity knows no boundaries, having created over 18 ragas that were inspired by artists such as Ustad Amir Khan to political luminaries such as Mahatma Gandhi. Every event, incident or person who moved Ustad Ji
found a reflection in his music. But do you know the irony? Khan Sahab does not prefer listening to music in his off time. Rather, he prefers complete silence for recreation. Do you know why? Because his mind, it can never stop analyzing the music being played in the background, and hence it can never rest. You know, for a lot of people, they listen to music for relaxation. You know, nowadays when you go to spa or centers, they are always having music. So that is very disturbing for me, because my mind works at that time. When I listen to any music, every note registers in my mind. I prefer for my relaxation and for my meditation, because silence is very, very important. Silence also has its own music. Of all the things that we got to know about Ustad Ji today, there's one thing that we do not know yet. That is, which is his favorite raga. So stay tuned for the next segment where Ustad Amjad Ali Khan Sahib will tell us about his favorite raga, the musical insights, nuances and subtleties of the raga he's about to describe. So stay tuned. एक बार जब उनका मकान बन रहा था तो हमें वो ले गए दिखाने के लिए, और वापसी में उन्होंने अचानक हमसे पूछा कि शंकरा में कौन सी बंदिश गाते हैं आप। तो हमने एक बंदिश उनको सुनाई, बला मान माने रे, बला मान माने रे, मोरी बतिया सखरे, बला मान माने रे। तो ये बंदिश सुन के बहुत खुश हुए, और उनके साथ बड़ी बड़ी यादें हैं लंदन में, अमेरिका में और पूरे हिंदुस्तान भर में। और हम लोगों के साथ बैठ के वो काफ़ी हंसते भी हैं, और बहुत इजी वे में हम लोग के साथ उनका व्यवहार है, और हमारे बड़े भाई हैं, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर होता है। कोई 35-40 साल पुरानी बात है। संडे का दिन था। उस दिन उस्ताद अमजद अली खान साहब का घर पे फ़ोन आया। कहीं डिफेंस कॉलोनी में उनका प्राइवेट कॉन्सर्ट चल रहा था, तो उनको कोई तबले वाले की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला कि आज तो संडे है, यहाँ तो कोई तबले वाला नहीं है। उनको कहे कोई सिर्फ ठेका बजाना है, ऐसे कोई तबले वाला चाहिए। उन्होंने बोला कोई भी हो चलेगा। मैंने बोला अगर सिर्फ ठेका बजाना है तो मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात है, आ जाओ। तो मैं फिर तैयार होके तबला लेके पहुँचा। खान साहब का आलाप जोड़ झाला चल रहा था। मैंने बाहर से ही, कमरे के बाहर से ही खड़े होके वहाँ तबला मिला लिया, और फिर सीधे अंदर गए, और फिर उनके साथ मैंने ठेका बजाया। मैंने उनको एक चीज़ और बोली थी कि झाले के टाइम मैं आधी लय रखूँगा, आप डबल में बजाना। ये वो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। शास्त्रीय संगीत की दुनिया मेरी अपनी दुनिया है। रोज़ अच्छे अच्छे लोगों को सुनना, उनसे बातचीत करना, ये आम फहम बात है। पर दूरदर्शन के लिए भी बहुत लोगों को हमने साक्षात्कार किया है, लेकिन किसी कलाकार से ये पूछना कि उनका पसंदीदा राग कौन है, ख़ास करके उस्ताद अमजद अली ख़ान से, जिन्होंने ख़ुद इतने राग रचे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगी ये बात कह पाना कि उनमें से कौन सा उनका सबसे फेवरेट राग है।
बहरहाल कोशिश करते हैं। दूरदर्शन ने मुझे आमंत्रित किया है, इस बात के लिए मैं हृदय से आह्लादित हूँ, शुक्रगुजार हूँ और एक कौतूहल का भाव भी है। देखें खान साहब का पसंदीदा राग कौन निकलता है, विच इज़ हिज फेवरेट रागा। भारतीय शास्त्रीय संगीत राग संगीत है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण। हमारा संगीत का परिचय, हमारे संगीत की आत्मा रागों में बसती है। राग एक तरह से कहें तो मेलोडी है, लेकिन वो मेलोडी तब राग बनती है जब वो एक अनुशासन का पालन करती है। कोई ठाठ होता है, कोई आरोह अवरोह होता है, एक निश्चित स्वरों की संख्या होती है। ये सब तो है, लेकिन ये शास्त्र की बातें हैं। सच पूछिए तो राग में प्राण का संचार करता है वो कलाकार, उसका आजीवन किया गया तपस, ये उसके हृदय की भावनाएं हैं जो उन स्वरों के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं और तब वो राग बनता है। वो निश्चित स्वर संख्या पर फ्रीक्वेंसी पे रखा हुआ कोई नोट नहीं है। पाश्चात्य संगीत की तरह से हमारा स्वर एक स्थान पर निश्चित नहीं है। ये राग के अनुरूप स्वरों को सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और ये आजीवन किए गए तपस के बाद कोई कलाकार हासिल कर पाता है। हमारे कलाकारों का भी कोई न कोई प्रिय राग होता है और हमारी ये श्रृंखला का नाम ही है माय फेवरेट रागा। हम खुशकिस्मत हैं कि आज विश्व के जाने माने सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां हमारे साथ हैं। आइए उनसे मिलकर के जानते हैं कि उनका फेवरेट राग क्या है और उसके बारे में। जी खान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हम करते हैं। नमस्कार। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि फेवरेट राग कौन सा है या फेवरेट बच्चा कौन सा है, क्योंकि बचपन से बहुत सारे रागों की तालीम शुरू हुई और अलग अलग गुरु अपने शागिर्दों को कौन सा राग पहले सिखाया जाए उनका अपना सोच होता है। सरोद जो एक बेपर्दा साज है और अगर ध्यान से ना बजाया जाए तो बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए सरोद पे कौन सा राग शुरू में सिखाना चाहिए, तो इन सब बातों का गुरु ये डिसीजन लेता है। तो यमन एक ऐसा, उसको यमन भी बोलते हैं, यमन भी कहते हैं, जो गायक लोग, बिलावल है, यमन है, और ये कल्याण थाट जो है ये भी एक बड़ा खूबसूरत समुद्र है। ये इसमें बहुत सारे यमन कल्याण और पूरिया कल्याण, शुद्ध कल्याण, पूरिया कल्याण, शुद्ध कल्याण, जी जी, और जो जिनको कल्याण नहीं भी कहा जाता है वो भी कल्याण से जुड़े हैं। केदारा है, जी जी जी, और हमीर है, कामोद है, जी, बिहाग है, और बिहाग है। तो ये सारा एक ही परिवार है सारा। जी। मेरा फेवरेट राग इन दिनों में गणेश कल्याण, ये मैं शायद आपका ही बनाया हुआ राग जी है। बनाया हुआ, क्या I feel embarrassed to say that I have composed or created a राग, क्योंकि I discover एक आत्मा आके खड़ी हो जाती है। आपके ये बताने पे मुझे याद आ रहा है कि हमारे मंत्रों को पता है, मंत्रों को कहा गया है ऋषियों मंत्र द्रष्टारः। हमारे ऋषियों ने मंत्र लिखे नहीं, उनको देखा, उनका साक्षात किया। तो आप जो बोल रहे हैं, जी। मुझे लग रहा है आपके रचे हुए राग भी आपके साक्षात किए हुए, आपके सामने प्रकट हुए राग नहीं, हैं। बस वो एक जैसे आपने फरमाया धुन बन के मेरे दिमाग में, वाह, ये सुर मेरे गाने के लिए बड़ा नीचा है, तो मैं माँ को सा मान के डा 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 ता नु डा 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 ता नु डा डा डा
da 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 ri na na da ta no। और ये गाते गाते जब कई महीने बीत गए तब अचानक एक दिन मैंने सोचा भैया मैं क्या गा रहा हूँ, क्या है ये। तब उसको एनालाइज करा कि दोनों मध्यम हैं, दोनों निषाद हैं और एक ये कल्याण थाट में है। और उन्हीं दिनों मुझे इनविटेशन आया पुणे से गणेश फेस्टिवल का, तो इस मेलोडी का नाम मैंने गणेश कल्याण क्या रख दिया। तो मैं सारे दुनिया में इसको बजा रहा हूँ और पहले ये जो धुन है उसको मैं बजाता हूँ, फिर एक रचना एक ताले में है वो मैं बजाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मुझे इसका आरोह अवरोह हाँ जी, चलन बता दें। ये तो अब मैं आपको वो धुन बजा के सुनाता हूँ। तो ये असली रूप है इसका। वाह वाह और फिर इसमें आप चाहें तो विलंबित 3 ताल की भी बंदिश बज सकती है और द्रुत की भी बंदिश बज सकती है, लेकिन मैंने एक ताले में एक रचना इसमें जो मैं बजाता हूँ जी जी वो थोड़ी अनयूजुअल है जी जी हमारे सरोद के दुनिया के लिए। दिन दिन धा त्रिदिन ना कत्ता धा त्रिदिन ना दिन दिन दा। ये दुरुत की बंदिश। क्या खूबसूरत बंदिश है। तो ये की शुरुआत ही सम से हो रही है सम से शुरुआत और दूसरे सिमेट्री बनाते हुए चल रहे हैं। और पहले के बुजुर्ग बंदिश कहते हैं, गायक लोग भी बंदिश कहते हैं, तंत्रकारी भी बंदिश कहते हैं, लेकिन मुझे रचना कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये रचना है, द्रुत की रचना और विलंबित की रचना। और इंग्लिश में कंपोजिशंस
तो पुराने लोग कंपोजिशन पहले सिखाते थे, क्योंकि कंपोजिशंस वर क्रिएटेड टू प्रिजर्व द राग। क्या बात है, राग का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है उसके अंदर। समाहित है उसके बिल्कुल। अंदर। वाह वाह। वो कोई भी राग आप ले लीजिए, अब जैसे एक शुद्ध कल्याण की बंदिश है, वो भी अनयूजुअल है, ऑफ बीट जा रही है सारी। धिन धा धा धिन धिन धा, असा यंत्रा दोनों ऑफ बीट जा रहे हैं। शुद्ध कल्याण की। हाँ साहब, इस बात मुझे सुनते हुए एक बात जहन में आई जी। जैसा कि आपने कहा कि बुजुर्ग खाली बंदिशें सिखाते थे, और मुझे याद है एक एक राग में 20 बंदिशें सिखाई जाती थी, अलग अलग रास्ते राग के दिखाई देते थे अलग अलग बंदिशों में। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह का सम है मींड के ऊपर जी आप गए हैं, तो ये सिखाने में कितनी मुश्किल होती है? ये बड़ा, अब ये हमारे जो शागिर्द हैं जी या जिन लोगों को मुझसे प्यार है, वो मेरी रचनाएं बजा सकते हैं, क्योंकि बगैर सीखे नहीं आ आएगा ये, सिर्फ सुनकर। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की महिमा है। गुरु शिष्य परंपरा जो है कि इसको समझो, थोड़ा बहुत अगर निकाल भी लिया है तो उसे आप समझ लीजिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का हमारे यंगर जनरेशन में भी अलाप जोड़ झाला और विलंबित गत और द्रुतगत ये चल रहा है। ये कन्वेंशन बन गया है। जैसे हमारे मजहब में वी ब्लाइंडली फॉलो द कन्वेंशन, ऐसी क्लासिकल म्यूजिक में भी वी ब्लाइंडली फॉलो द कन्वेंशन, बट वी ऑल टॉक अबाउट ट्रेडिशन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। तो कन्वेंशन एक बड़ा अनहेल्दी वर्ड है ये। आई डोंट रिस्पेक्ट कन्वेंशन, क्योंकि हमारे पिताजी, हमारे गुरु उस्ताद हाफिज अली खान साहब, कोई भी नई बात अगर मेरे दिमाग में आती थी तो वो इनकरेज करते थे। क्या बात है, वाह कि तो बेटा ये नई बात है, ये नया रूप है, इसको एक नाम दे दो। यानी उन्होंने इनकरेज करा कि आप एक नया राग के बारे में सोच सकते हैं। आपकी ये बात सुन के मेरी बात जहन में आई कि जो आपने गणेश कल्याण अपना फेवरेट राग बताया है, वो किसी से मिलता जुलता नजर आता है? उसके आसपास कोई राग या कोई देखिए सारे सिमिलैरिटी पाते हैं? सारे कल्याण यमन कल्याण से जुड़ा हुआ है। सुनते हुए गौड़ सारंग की याद आ रही है। गौड़ सारंग की भी है। गौड़ सारंग भी कल्याण थाट के ही राग है। जी। लेकिन बुजुर्गों ने उसको सारंग कर दिया। नहीं तो गौड़ कल्याण भी हो सकता था। जी, क्या अच्छी बात कही। दिन दिन दादा तिन तिन ता तक दिन दिन। तो एकदम आपका गणेश कल्याण लग रहा है।
श्याम कल्याण की एक बंदिश है। श्याम कल्याण है, कामोद है। कामोद की भी रचनाएं कुछ ऐसी हैं। ता ता धिन धिन दा दा धिन धिन डा डाला डाला डेड़ा डेड़ा डाला डाला डा। तो हमारे पिताजी हमेशा मुंह से पहले कि भाई गले से साफ करो तब हाथ में निकलेगा। ये क्या अच्छी बात। ये बहुत ज़रूरी है। ता तक धिन धिन दा धा डेड़ा डेड़ा डा रा डाला रा डा डाला डाला डेड़ा डेड़ा डाला डाला रा डा डाला डाला डेड़ा डेड़ा डाला डाला रा डा डाला रा डा डाला गा मा रे पा सा नि रे नि सा पा मा धा मा पा सा नि रे नि सा पा मा धा मा पा गा मा रे डेड़ा डेड़ा डाला डा डाला डाला। बहुत सारी रचनाएं कामोद में भी हैं। नहीं, आपने मिलते जुलते रागों के तुफैल में इनका जिक्र किया, श्याम कल्याण का और कामोद का और गौड़ सारंग का। अब छाया नट का भी जी जी, पंचम और ऋषभ का कई संवाद। ऐसे राग हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग उसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं। अब जैसे एक शुद्ध नट है, बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन उसको भी लोग 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक गाते बजाते हैं। तो आई विश के पुराने बुजुर्ग लोग एक किताब लिखते और उसमें बोलते कि कौन से राग को कितनी देर बजाता है। नहीं, ये तो समझ में आ जाता है, ये जाती है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे हमने देखा है संगीतकारों को, इसीलिए इतना रिपीटेटिव हो रहा है, रेपिटेटिव हो जाता है, बोरिंग हो जाता है कि भाई वही ताने। आनंदी में आप कितनी देर बढ़ सकते हैं। नहीं, जब आप ये बता रहे थे कि आलाप जोड़ जाना और फिर विलंबित का रास्ता, तो मैंने देखा कि आज आपने शुरुआत उल्टी तरफ से की। जी, बहुत अच्छी बात लगी। तो ये प्रेजेंटेशन जो है, यहाँ गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता है। जी जी जी, जो प्रेजेंटेशन है, जब आप स्टेज पर आते हैं, जी जी जी, तो यू हैव ए फुल फ्रीडम टू डिसाइड योरसेल्फ कि आप कितनी देर किस चीज़ को बजाओगे, कितनी देर गाओगे। अब छाया नट भी सारी दुनिया ही गाती बजाती है, लेकिन हमारे पिताजी के कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिशियन थे उस्ताद फैयाज खान साहब जी, क्या बात है। उनका जो बंदिश है, वो अगर वो बंदिश ना हो छाया नट में तो मज़ा नहीं आता उसका। छाया उनकी नट। जयंती बंदिश हो तो जयंती न बने। दा दिन दिन दा दा तिन तिन दा दा तिन। झनन झनन, वाह।
खूबसूरत बंदिश है और बड़ी फिर मशहूर बंदिश है। जब तक राग में आपकी बंदिश अगर इंटरेस्टिंग ना हो और बंदिश में कोई खूबी ना हो, कोई मज़ा ना हो, तो वो राग भी बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं कितनी देर सस्टेन करूँ इसको। आपने जो अभी बात कही कि आपके वालिद जी, आपको जी। गा करके, तो वो परंपरा हम देख रहे हैं आज तक कायम है। आप भी खुद गा करके ही बताते हैं बिल्कुल शागिर्दों बताना को। वो बहुत ज़रूरी है। जी, जी, अमान जी। अयान को भी बचपन से जी जी। कि सुर को पहचानो। अब बहुत सारी भाषा बहुत स्कूलों में मैं देखता हूँ बच्चों को, सुबह की जो असेंबली होती है, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे देशभक्ति के गाने, कहीं ये कहीं वो। मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में सरगम सिखाना चाहिए बच्चों को, क्या अच्छी बात है, वाह। क्योंकि ये 7 स्वर जो हैं ये हमारे प्राण है। दिमाग में, दिमाग के पुर्जों को ट्यूनिंग कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर स्कूल सबसे पहले बच्चों को सुबह सरगम गवाए उनको। ये म्यूज़िक टीचर अगर ऐसा करें तो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा ये। क्या अच्छी बात है। जी। खान साहब, आपके फेवरेट राग पर ही ये केंद्रित है। हाँ जी, तो हाँ अभी हमने आपसे जो पूछा, आपने बहुत सारे राग बताए उससे जी, मिलते जी, जुलते। जी। आपने बीच में शुद्ध नट का भी जिक्र किया था, क्या उसका भी कुछ हाँ, रिश्ता वो भी बनता है? चायनट से ही जुड़ा जी, हुआ जी, है। बहुत सारी गुंजाइश है ही नहीं। हाँ, जरा सी वो जरा झलक सा मिलेगी। यही स्ट्रक्चर है, छायानट वाली रहता है। जी। वाह वाह वाह। बेसिक ढांचा यही मैं है, दिखाई दे रहा है इसकी शक्ल लेकिन इससे कितनी मिलती देर हुई। इसमें आदमी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हम इस नज़र से नहीं देख रहे हैं। हाँ जी। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मुझे गणेश कल्याण की छवि नजर आ बिल्कुल रही बिल्कुल है। वही है। जी सब जी जी। तो ये आपने सब बड़े खूबसूरत राग हैं, जी, खूबसूरत जी, जी। मेलोडीज हैं। खुदा करे हर यंग म्यूजिशियन उसका रुझान बंदिशों की तरफ हो, रचनाओं की तरफ हो। जो मैं देख रहा हूँ वो बिखर रहा है। वही आलाप, जोड़, झाला, विलंबित गत, द्रुत गत, वो हमने भी करा है, वो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन और भी दुनिया और भी बड़ी है, ये इसका जो होराइजन है और भी बड़ा है। तो वो जो पुराने ज़माने में प्रथा थी एक एक राग में कई कई बंदिशें सिखाने की, आपको लगता है वो अब वाजिब देखिए, थी? एक मारू बेहाग जैसा एक राग है, वो भी जी। कल्याण थाट का है, लेकिन कैसी ये बंदिश मशहूर हो गई, और ख़ास तौर पर हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने जी। दिन दिन दादा, दिन दिन दादा, दिन दिन दादा, दिन दिन दादा, दिन। अब ये तो बंदिश अलग ही- 3 ताल की एक अलग करवट ले तो लिया इसने। अनकन्वेंशनल है ये। जी 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 जी। वाह। तो ये अलग अंदाज है इस बंदिश का। तो ये है कि जब आदमी, खुदा कहता है कि बंदे तू कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात है, वाह। अगर बंदा कोशिश ही नहीं करेगा, जी जी जी। अगर बंदा विलंबित गत और द्रुत गत में ही रहेगा, तो वो आगे कैसे काम बढ़ेगा उसको। तो मेरी कोशिश
ये है, और पिताजी का यही कहना था कि बेटा कोशिश करते रहो। हाँ साहब, ये जो आपका पसंदीदा राग है, जी इसके अंदर कुछ धुन या कोई फिल्मी गीत या कोई ऐसा जिसे कहते हैं देखिए, लाइट कल्याण क्लासिकल, थाट ऐसा में, कुछ ध्यान आता है? यमन कल्याण में हजारों फिल्मी गाने हैं। जी 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 जी। एक गाना मुझे याद है कि लता जी ने गाया था, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, और बहुत ही खूबसूरत उसकी कंपोजिशन बंदिश थी। और तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, कुछ इस किस्म के शब्द थे। और एक गाना मोहम्मद रफ़ी ने भी, वो भी शायद शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, मन रे तू काहे न धीर धरे या कुछ ऐसा उसका था। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। ये प्रसंगांतर हो जाएगा, हम लोग कहीं और टहल जाएंगे, लेकिन मैं धरा की धूल हूँ जब आपने कहा, हाँ जी, तो मुझे आपके वालिद से जुड़ी एक बात याद आ गई। आपने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जी आप ट्रेन से एक बार सफ़र कर रहे थे और आपने नाक सिकुड़ते हुए धूल उड़ाने की कोशिश की थी। हाँ, जरा वो उसको बताएं। ट्रेन में उनके साथ में था। उस ज़माने में फर्स्ट क्लास का जो डब्बा होता था वो जी, जी, काफ़ी बड़ा होता था। हाँ हाँ। उसमें वो अपनी नमाज भी पढ़ लेते थे, जान नमाज बिछा के, और उनका उगालदान और बटुआ ये सब हो, तो खिड़की खुली रखते थे वो उसमें से काफ़ी धूल आती थी, डस्ट आती थी। मैं उनको कहा, मैंने कहा हुजूर ये खिड़की बंद कर लें। कहना बेटा क्या हुआ? मैंने कहा ये धूल आ रही है काफ़ी। कहना बेटा जिंदगी की यही तो सच्चाई है। क्या बात है, खाक में मिल जाना है। वाह खाक, वाह ये जो धूल है, मिट्टी है, यही हमारी ज़िंदगी का फ्यूचर है, वाह वाह। कि हर इंसान एक मिट्टी बच जाता है। देखिए इतनी बड़ी दार्शनिक बात उन्होंने कैसे और वो कह किसी भी मज़हब का हो, डाली। वाह वाह उसको तो मिट्टी बनना है, वाह वाह। धूल बनता है। और इसीलिए हम लोग जो मत्था टेकते हैं, सिजदा करते हैं, जब तक हम ज़मीन पे सिजदा ना करें तब तक आनंद नहीं आता। क्या अच्छी बात कही। वो जब सिजदा करते हैं तो लगता है कि हम किसी और जगह हैं इस वक्त। तो समर्पण जो है, वो भगवान को समर्पण हो या गुरु को हो या संगीत को हो। जी जी जी। तो इसलिए हमारे देश में हम लोग कहते हैं कि स्वर ही ईश्वर है। वाह। और द म्यूजिक हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड। म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, लाइक फ्लावर्स, एयर, वाटर, फायर, फ्रेग्रेंस, कलर्स। क्या अच्छी बात। तो ये भगवान की अपार, इट्स ए प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं खान साहब, तबीयत खुश हो गई। और कहाँ इस धरातल से उस धरातल तक हमें पहुँचा दिया है। हम चाहेंगे कि गणेश कल्याण पे लौटते हुए कोई एक ऐसी चीज़ बजा दीजिए जिसकी याद के लिए हम यहाँ से जाएंगे। एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके मैंने बहुत सारे गाने बजाए हैं। जी जी। और बहुत सारी धुन है, लेकिन एक ये खमाज के अंदर उन्होंने एक रचना बनाई थी। अच्छा। कौन खेला कौन खेल बे, कुछ ऐसा उसके वर्ड है। धा दिन दिन तक दिन दिन, धा दिन दिन तक दिन दिन।
ख्याली की खुशबू जी हाँ, आई, ये बाउल की खुशबू बिल्कुल। आई, बंगाल तो की उन्होंने मिट्टी से जोड़ हर दिया राग हमको। में वाह वाह अपने कंपोजिशन बनाए वाह। जी जी और हर राग में टैगोर साहब एक अपना स्पेशल सुर लगा देते थे। बिल्कुल। और वो क्लासिकल म्यूजिशियन उन बातों को बुरा मानते थे। लेकिन जब मैंने लेजेंडरी सुचित्रा मित्रा जी जो रविंद्र संगीत की बहुत बड़ी सिंगर, उनके साथ मैंने कई कॉन्सर्ट्स करे, एल्बम बनाया, और मैंने महसूस किया कि वो पहले पोएट थे जो संगीतकार भी थे। यानी ही वॉज कंपोजर, ही वॉज ए पोएट। तो अकॉर्डिंग टू हिज पोएट्री ही ऑलवेज यूज्ड टू ऐड वन नोट। अब जैसे बिहार में एक कंपोजिशन है उसमें कोमल ने खाद लगा दी, जी जी ऐसे उनके हर रागों में कुछ ना कुछ। तो मैंने कॉन्सर्ट में बोला कि ओनली जीनियस कैन टेक लिबर्टी। वाह 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 वाह। और आप हमें फिर से महाराष्ट्र ले चलें उसी गणेशोत्सव में और धुन से समापन करें। जी। हाय हाय हाय। जाने से पहले जी हम इस श्रृंखला में जितने भी हमारे कलाकार आए हैं, जी हमने उनसे गुजारिश की है कि एक रजिस्टर है जी जिसमें आप अपने दस्तखत करते जाएं, और अगर कैसा लगा ये भी लिख दें तो ज़हर जरूर किस्मत, जरूर तो मैं ज़रूर। हम उसकी तरफ मुखातिब होंगे। ईश्वर करे कि आपकी ये रचनाशीलता बनी रहे, जी। आप नित नया रचते रहें। हमारा बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। बहुत नमस्कार। शुक्रिया। चलते हैं, बस करते हैं। हाँ, तो हम आपको ले चल रहे हैं। ये रहा हमारा रजिस्टर और इसमें वाह, दूरदर्शन को शुभकामनाएं देते हुए भी आपने स्वर ही ईश्वर है, जाते जाते ये महामंत्र देकर के आप जा रहे हैं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, सेहत